ओके। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का मॉड्यूल 4, दैट इज रेफरेंस क्लाउड रेफरेंस मॉडल। ओके। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है सबको पता है। दैट इज यूटिलिटी ओरिएंटेड कंप्यूटिंग यूजिंग इंटरनेट फ्रॉम हार्डवेयर से लेकर के सॉफ्टवेयर तक। सारे चीज नेटवर्क, स्टोरेज, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स, एवरीथिंग को हम एज अ सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके। So this is the cloud reference model. Cloud reference model में we have infrastructure as a service at the bottom layer, platform as a service as at the middle layer, and software as a service at the top layer. Okay. So आप देख सकते हैं कि cloud resources जो है, those are the physical infrastructure, data center, clusters, and all that are involved. Okay. That are the actual uh, resources. And then comes the core middleware, which includes cloud hosting platforms. Okay. Then comes the user level middleware, which includes the cloud programming environment and tools. And at last is user applications that are SaaS products, cloud applications. Okay. So in this, uh, in infrastructure as a service, there is a M thing written over here. So this is the management layer, which is denoted by IaaS M. Okay. Management layer is the cloud hosting platforms and the core middleware. Okay. Then pure PaaS is when only an environment is provided and the infrastructure is not configurable by the user and it is managed by the provider only. And then similarly, pure SaaS. Okay. Now comes the cloud reference model. As I explained everything, uh, there is a user level middleware here at the platform as a service, which is used by the applications. And then what is pure PaaS? What is pure SaaS? Everything is explained. Now, what is SaaS? Any application that can be accessed by the customer anywhere, anytime. PaaS, uh, environments where the applications could be deployed and executed. Okay. And IaaS, virtualized hardware solution with storage, so that you can build your own infrastructure. Okay. Now, examples of SaaS, Salesforce, project management, Google Apps. Okay. PaaS, Google App Engine and Microsoft Azure, Microsoft Aneka also. Then infrastructure is Amazon EC2 and S3. Cloud reference model, as explained. Now, what is infrastructure as a service or hardware as a service? So, infrastructure as a service कुछ नहीं है, बॉटम मोस्ट लेयर है ये, ठीक है, बॉटम मोस्ट लेयर है. This includes cloud resources and system infrastructure. See, cloud resources and system infrastructure and core middleware. Okay, this is infrastructure as a service. Now, इसका फंक्शन क्या है? तो वर्चुअल हार्डवेयर, स्टोरेज, नेटवर्किंग. ठीक है, दिस प्रोवाइड्स थ्री थिंग्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर: हार्डवेयर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग. तो जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन होता है एंड हार्डवेयर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग फॉर्म ऑफ वर्चुअल मशीन्स बनते हैं. दैट वर्चुअल मशीन्स आर प्योरली कस्टमाइज्ड according to the need of the user. It has no effect or no relation with the underlying hardware or physical infrastructure. ठीक है. So this is infrastructure as a service. तो ये जो cloud resources हैं वो computing power provide करते हैं and ये data centers होंगे, clusters होंगे. Okay. And virtual machine instances के through users use करते हैं. Now user is given tools and interfaces, okay, जिससे वो अपने virtual instances को monitor कर पाए. Now example is EC2, S3, RightScale and vCloud. Now infrastructure as a service, as you can see, physical infrastructure है. Then this is the management software. So इसमें three layers आते हैं infrastructure as a service में: physical infrastructure, management software, and web-based management interface. So this web-based management interface is a user interface जो web services portals REST API के through designed है. And उसके through you can do the management of your software. Like आप प्राइसिंग बिलिंग चेक कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो, देन शेड्यूलिंग कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस मैनेजमेंट होता है, वीएम की मॉनिटरिंग कर सकते हो, हाउ द पूल मैनेजमेंट इज टेकिंग प्लेस, वीएम की इमेज रिपोजिटरी एंड ऑल. ओके.
सो द फर्स्ट लेयर इज द फ्रंट एंड, जहाँ से आप इंटरेक्ट करोगे, ओके, एन इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म मेड फॉर द यूजर्स टू इंटरेक्ट टू द मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसमें मैनेजमेंट ऑफ द वर्चुअल मशीन्स जो है, दैट इज डन बाय द मैनेजमेंट इंटरफेस, ओके। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, सो मैनेजमेंट इंटरफेस तो मेरा फ्रंट एंड हो गया। तो फ्रॉम दी फ्रंट एंड मैं न्यू वर्चुअल मशीन्स को रिक्वेस्ट करूँ, रिसोर्सेज मैनेज करूँ, यूजेज देखूँ, ओके। एंड देन कम्स द मिडिल लेयर, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। सो यहाँ पे प्राइसिंग बिलिंग होती है। दिस कंट्रोल्स ऑल द मैनेजमेंट थिंग, ऑल द रिसोर्सेज एंड ऑल। क्वालिटी ऑफ सर्विस प्राइसिंग होती है, ठीक है, कि मैंने कितनी यूजेज की उसके अकॉर्डिंग बिल बन गया। क्वालिटी ऑफ सर्विस इंश्योर होता है। शेड्यूलिंग होता है, वीएम्स को रिसोर्सेज एलोकेट करना है, शेड्यूलिंग, लोड बैलेंसिंग, कि एवरीथिंग इज एग्जीक्यूटेड properly. Monitoring system performance health, reservation of for high priority task. VM की image repository होती है, so that it can be quickly deployed when needed. VM pool management, so बहुत सारे VMs हैं, तो creation, migration, termination and resource allocation, okay. Then provisioning, VM की creation and deployment. So this is basically the middle layer, and the bottom layer is physical infrastructure, data center हो गया, clusters हो गया, heterogeneous desktops हो गए. Third party is integration with external providers. Okay. Multi-cloud setups enables hybrid cloud. Hybrid cloud क्या होता है आगे देखेंगे. But third party IaaS clouds है, that enables hybrid cloud. जहाँ हम एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस कर सकते हैं, अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स को एक्सेस कर सकते हैं. नाउ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस क्या है? कुछ नहीं है. दिस इज द मिडिल लेयर, ओके. यहाँ पे क्या आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में? क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स एंड यूजर लेवल मिडलवेयर, ओके. सी, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, दिस वाज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. नाउ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स एंड यूजर लेवल मिडलवेयर, दैट इज क्लाउड प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट एंड टूल्स, ओके. सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में रन टाइम इन्वायरमेंट्स बनते हैं जहाँ पे डिप्लॉय और एग्जीक्यूट हो पाए हमारी एप्लीकेशंस, ओके. तो इसका जो यूजर लेवल मिडलवेयर होता है, दैट मैनेजेस क्वालिटी ऑफ सर्विस, स्केलिंग एज पर एप्लीकेशन का नीड, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन मैनेजमेंट. यूजर का फोकस कहाँ पर होता है? मेनली लॉजिक लिखने में. बाकी फॉल्ट टॉलरेंस एंड स्केलेबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर का वर्क होता है. प्योर पैस क्या है? कि सिर्फ यूजर लेवल मिडलवेयर देंगे एंड बाकी कुछ नहीं देंगे. बाकी थिंग्स विल बी मैनेज्ड बाय द प्रोवाइडर. You cannot configure it. Okay. So for example, Manjra Aneka is a pure PaaS solution. So they, configure their infrastructure on their own. You are not given the control of the infrastructure. But Windows Azure, Google App Engine, इसमें आप infrastructure को भी configure कर सकते हो, and on the top of infrastructure PaaS बना हुआ है. So that is not pure PaaS. सो यहाँ पे भी वेब बेस्ड इंटरफेस है, देन यूजर लेवल मिडलवेयर, कोर मिडलवेयर इसकी, एंड देन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइडर्स. अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? वही सर्वर स्टोरेज. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस क्या है बताइए? पास की कोर मिडलवेयर क्या है? सो मिडलवेयर ऑफ द पास इज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन है, ओके, एंड इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग, डिप्लॉइंग, मैनेजिंग एप्लीकेशन. अब इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं? तो एप्लीकेशन के नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज की एडजस्टमेंट होती है. दिस इज वन ऑफ द कंपोनेंट. सेकंड इज रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है. थर्ड इज ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, अपडेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है. ऑथराइजेशन, अकाउंट मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ सर्विस मेंटेन करना, जो इसके लिए हमने पेमेंट किया है, जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट हुई है बिटवीन द प्रोवाइडर एंड द क्लाइंट, ठीक है. इट इंश्योर्स दैट एंड मैनेजेस बिलिंग. अगेन वेब बेस्ड इज द फ्रंट एंड इंटरफेस, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करोगे, डिप्लॉय करोगे. सो इट यूजेस रेस्ट एपीआईज, डैशबोर्ड्स होंगे, वेब पोर्टल्स होंगे, अपना प्लेटफॉर्म सर्विसेज मैनेज करो, एंड एपीआईज एंड एसडीकेस भी होंगे जिस पे आप बिल्ड एंड डिप्लॉय कर सकते हो. नाउ ओके, नाउ कम्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PaaS सॉल्यूशन. सो रन टाइम फ्रेमवर्क, अगेन सॉफ्टवेयर स्टैक जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, एंड एक रन टाइम फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जहाँ पर आपकी कोड रन होगी. एब्स्ट्रैक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर से यू हैव नो रिलेशन.
सो इट इज़ अ हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो आप सिर्फ लॉजिक पर फोकस करोगे एप्लीकेशन के। ऑटोमेशन, डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग ऑटोमेशन, अगेन रिपीटेटिव थिंग्स। सो क्लाउड सर्विसेज में क्या है, ये एपीआईज प्रोवाइड करता है जिससे आप क्रिएशन जो है तो आपकी एप्लीकेशन की क्रिएशन थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है। नाउ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में एवरीवन नोज टॉप ऑफ द स्टैक है ना। फंक्शन क्या है कि सब्सक्रिप्शन मॉडल पर एज पर यूजर डिमांड एप्लीकेशंस प्रोवाइड करना ओवर द क्लाउड। ओके, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, जैसे पहले क्या होता था कि लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर लेने पड़ते थे। ठीक है, अब क्या है कि क्लाउड मॉडल है, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स है, तो सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो। लाइक प्रीवियसली वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स एंड ऑल लाइक पिनाकल स्टूडियो, तो आप एक बार खरीदो उसकी लाइसेंस आपको मिल गई, इट इज कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड ऑन अ डेस्कटॉप एंड इट इज कम्प्लीटली रनिंग ऑन योर सिस्टम। अब क्या है कि यू टेक अ सब्सक्रिप्शन, everything is running on their servers and you are just using and doing your work. Okay, so this is software as a service. तो applications mostly web based होते हैं and it is a multi-tenant architecture, so multiple people are sharing that particular application, so this brings down the cost also. So Google Docs, Facebook, Instagram, Salesforce, Flickr, nowadays Adobe and Microsoft Office also. Now types of cloud: public cloud, private cloud, hybrid cloud, community cloud। पब्लिक क्लाउड जो सबको अवेलेबल है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अपनी बिलिंग क्रेडेंशियल्स डालो, बिलिंग डिटेल्स डालो, क्रेडेंशियल्स डालो, लॉगिन करो, सब्सक्राइब करो एंड यूज करो। सो दैट इज पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड में क्या है, बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, तो योर आईटी कॉस्ट डिक्रीजेस। ठीक है। स्मॉल इंटरप्राइजेज है, उनके पास इतना सेटअप करने के लिए पैसा नहीं है, सो दे कैन यूज दिस पब्लिक क्लाउड। ओके, इसमें अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगे, आप अपनी यूज स्केलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अपसाइज और डाउनसाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर डिमांड्स। सो पब्लिक क्लाउड में क्या है, मल्टी टेनेंसी है, मल्टीपल पीपल आर यूजिंग, राइट। सॉफ्टवेयर offerings of public clouds, Amazon EC2, okay, in infrastructure as a service, then in platform as a service it is Google App Engine, software as a service it is Salesforce। now प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि सब चीज सेम है एज पब्लिक क्लाउड, बस बस इट इज प्राइवेट टू अ इंस्टीट्यूशन, कि इस इंस्टीट्यूशन के ही लोग देख सकते हैं कि इस पे क्या होगा। ठीक है, पब्लिक क्लाउड में भी पे एज पर योर यूज मॉडल होता है। सो नाउ प्राइवेट क्लाउड में क्या है कि इट कीप्स द जो भी बिजनेस ऑपरेशंस है ऑफ अ कंपनी कन्फाइंड टू दैट कंपनी पीपल ओनली, सो सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं होता है इसमें। देन बेटर यूटिलाइजेशन है ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज इन पब्लिक क्लाउड एज वेल एज प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड में थोड़ा सा स्केल करने का ये लिमिटेशन होता है, बट या इसमें सिक्योरिटी बेटर होती है। नाउ कम्स हाइब्रिड क्लाउड। सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड तुम यूज कर रहे हैं, उससे हमें प्राइवेसी मिल ही रही है, राइट। बट इफ प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइड सम लिमिटेशन देन वी कैन यूज पब्लिक क्लाउड ऑल्सो। ओके, सो इसमें स्केलिंग की लिमिटेशन खत्म हो जाती है जो प्राइवेट क्लाउड में थी, एंड प्राइवेसी भी मिलता है। दोनों के एडवांटेजेस आ जाते हैं, पब्लिक क्लाउड के भी प्राइवेट क्लाउड के भी। सो इट इज रेफर्ड टू एज हेटेरोजेनस क्लाउड्स। सो हाइब्रिड क्लाउड्स जो है, क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है अगर वो मीट नहीं हो रहा है तो वी कैन स्टार्ट यूजिंग द पब्लिक क्लाउड इंस्टेड ऑफ द प्राइवेट क्लाउड इन हाइब्रिड क्लाउड। तो मिक्स ऑफ बोथ यूज होता है। तो इसमें भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एफिशिएंटली हो रही है, एक्सपर्ट नहीं हो रही है, बिकॉज वी आर यूजिंग द ऑलरेडी एक प्री एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल्सो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है। सो जब क्वालिटी ऑफ सर्विस आप मीट ना कर पाओ एंड आप प्राइवेट क्लाउड के जगह एक्सटर्नल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पब्लिक क्लाउड को यूज करो, तो इसको बोलते हैं क्लाउड बर्स्टिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लाउड बर्स्टिंग। सो व्हेन यू यूज एक्सटर्नल रिसोर्सेज टेम्पोररीली बिकॉज प्राइवेट क्लाउड में लिमिटेशन आ गई, सो दिस इज कॉल्ड क्लाउड बर्स्टिंग। सो स्केलेबिलिटी इसमें काफी इंप्रूव हो जाता है। ठीक है। Now comes platform as a service like Microsoft Aneka. ठीक है, this supports hybrid cloud. Aneka supports
हाइब्रिड क्लाउड। ऑल्सो यहाँ पर कहीं हमने पढ़ा था इनेबलिंग ऑफ हाइब्रिड क्लाउड के बारे में। या माइक्रोसॉफ्ट अनेका इज अ प्योर पैस, माइक्रोसॉफ्ट अनेका हाइब्रिड क्लाउड को भी सपोर्ट करता है। देन कम्स हाइब्रिड क्लाउड। ओके, सो दिस वाज हाइब्रिड क्लाउड। नाउ कम्युनिटी क्लाउड्स क्या होते हैं? सो कम्युनिटी क्लाउड्स आर कि एक ही क्लाउड है, ओके, which is shared by multiple organizations. Okay. Community cloud is a cloud that is shared by multiple organizations. So अगर दो तीन organizations हैं, उनके shared concerns हैं, like same mission है, same security requirements है, same policies है, so they can use same cloud. तो उससे क्या होगा? उनकी cost reduce होगी. Okay. So community clouds is designed for a specific industry. Like domain specific organizations can collaborate on a community cloud. Now, community clouds are created by integrating the services of different clouds, such as government bodies की बन गई है, private enterprises की बन गई है, okay, research organizations and all. So, mixed deployment होती है इसमें public, private and hybrid clouds की, multiple clouds combined to form community clouds. Like healthcare industry की community cloud है, public sector की अलग अलग community cloud है, scientific research के लिए एक अलग community cloud है. So now economies. So cloud में pay as you go model है. So this is the biggest benefit कि आप जितनी यूज कर रहे हो उतनी पे करो. अपफ्रंट आईटी कॉस्ट रिड्यूस होते हैं. आप ये बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने की जरूरत नहीं है. You can use resources available in the world on the cloud. Software licensing की जरूरत नहीं है. You can go with subscription model. Maintenance, fault tolerance, ये सब scalability, ये सब आपकी इशू नहीं है, सर्विस प्रोवाइडर की इशू है. सो कैपिटल कॉस्ट जो है वो बिगेस्ट बेनिफिट है, इसमें रिड्यूस होता है. एंड पे एज यू गो इज द बिगेस्ट बेनिफिट. नाउ दीज आर द चैलेंजेस. इंटरऑपरेबिलिटी, वेंडर लॉक इन होता है अभी क्लाउड में. सो स्विचिंग प्रोवाइडर्स इज नॉट दैट इजी. स्केलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस को हैंडल करना इज डिफिकल्ट फॉर द प्रोवाइडर. सिक्योरिटी, ट्रस्ट एंड प्राइवेसी, यू हैव टू बी सी, जब भी प्रोसेसिंग होगी इंफॉर्मेशन की तो मेमोरी में डिक्रिप्ट होगा ही होगा. सो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोवाइडर कि आपकी डेटा जो है वो सिक्योर है. So these are the challenges, and this was module 4.